So today we're gonna study about elasticity and its application. Before digging into the topic, I would like to throw some light upon law of demand. Law of demand state that प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ेगा. बट हमने ये नहीं पढ़ा कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कितना चेंज आएगा. यही हम पढ़ेंगे कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कितना चेंज आया, बहुत ज़्यादा, कम या फिर मीडियम चेंज आया. So elasticity, it is a measure of how much buyers and sellers respond to change in determinants of demand. It is a measure कि quantity demanded में कितना change आया due to the change in price and other determinants of demand. Other determinants of demand में आ गया price, income of the consumer, price of related goods and other variables. जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाने से वो कितना डिमांड करेगा. एंड इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टी की प्राइस बढ़ गई तो कॉफ़ी के डिमांड में क्या चेंजेस आएगी. सो वी विल स्टडी ऑल दिस चेंजेस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियोज़. सो स्टे अपडेटेड. Types of elasticity of demand. So there are three types of elasticity of demand. First is price elasticity of demand, second is income elasticity of demand, and third is cross elasticity of demand. So price elasticity of demand, as I already told, that if price increases then demand decreases and vice versa. Second is income elasticity of demand. In this, if there will be an increase in the income of the consumer, then he will increase or decrease his quantity demand. फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनकम बढ़ने से वो ज़्यादा डिमांड करेगा उस गुड का. एंड इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, इनकम बढ़ने से वो उस गुड का डिमांड कम कर देगा. क्यों भाई, क्यों घटिया सामान खरीदेंगे जब यदि इनकम ही इतना बढ़ रहा है तो, है ना. ओके, सो देन कम्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट इंक्लूड्स रिलेटेड एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स. इन गुड्स के प्राइस में चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आएगा. दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सब्स्टिट्यूट गुड्स and complementary goods. These two goods are included in the cross elasticity of demand. So substitute goods are identical goods in the eyes of consumer. They fully or partly satisfy the same needs of the consumer. For example, let's take tea and coffee. Tea का price बढ़ गया तो consumer will migrate towards coffee. Second example, you can take cola and Pepsi. कोला का प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो पेप्सी खरीदने चला जाएगा. क्यों, ज़्यादा पैसा दे के कोला खरीदे, वो पेप्सी कम में मिल रहा है, पेप्सी खरीदेगा ना. फिर सेकेंड आ गया कम्प्लीमेंट्री गुड. कम्प्लीमेंट्री गुड इज़ अ प्रोडक्ट दैट एड वैल्यूज़ टू अनदर. इन अदर वर्ड्स, देयर आर टू गुड्स दैट द कंज्यूमर यूजेस टुगेदर. फॉर एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल. पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, अब कंज्यूमर क्या करेगा, वो आइदर वो कार परचेज करना कम कर दे, या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर माइग्रेट करे, या फिर ही स्टार्टेड परचेसिंग द व्हीकल्स विच रन ऑन बैटरी. सो दिस इज़ हाउ डिमांड इज चेंजिंग in response to increase in price of substitute and complementary goods. Okay, so now have a look on price elasticity of demand. The price elasticity of demand measures the change in quantity demanded due to change in price, already explained. Then it is computed as the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसका नेगेटिव. तो इनिशियल क्वांटिटी डिमांड क्या था और फाइनल क्वांटिटी डिमांड क्या है, उसका चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस एंड फाइनल प्राइस, या चेंज इन इनिशियल प्राइस एंड फाइनल प्राइस, उसका नेगेटिव साइन इज यूज हियर टू शो द inverse relationship between quantity demanded and price. There is a negative relation between the two. If one increases then other one decreases and vice versa. Yeah, so simple. Okay, then now we will study about types of price elasticity of demand. पहले हमने पढ़ा types of elasticity of demand, अब हम पढ़ेंगे types of price elasticity of demand. So there are 5 types of price elasticity. First is ED is equal to 1, ED is more than 1, ED is less than 1, ED is equal to 0 and ED is equal to infinite. So एक एक करके सारे को डिटेल्स में पढ़ते हैं. ED is equal to 1. तो हमने पहले पढ़ा कि ED का फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो प्रैक्टिकली यदि सोचेंगे तो
आउटपुट 1 कब आएगा? तभी आएगा ना जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू दोनों सेम है. So this implies that if percentage change in quantity demanded will be equal to percentage change in price, then the resultant output will be 1. Hence, if percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, then demand is said to be unitary elastic. तो जब भी ED का वैल्यू 1 आएगा तभी then only the demand will be the demand will said to be unitary elastic demand. In this case, demand curve is rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola is a curve under which the total area at all points will be same. तो सिंस दोनों का वैल्यू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों का वैल्यू सेम है सो और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विल बी फॉर्म्ड और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स आएंगे उन सारे का एरिया सेम होगा सिंस दिस टू आर इक्वल. Hence, when ED is equal to 1, then the demand is known as unitary elastic demand and rectangular hyperbola. Cool. Then next comes when ED is more than 1. ED more than 1 कब होगा? जब percentage change in quantity demanded ज़्यादा होगा percentage change in price से. So when percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price, then demand is said to be elastic. ये देखो, let's have a look on the graph. तो यहाँ पे इनिशियल प्राइस है P, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है Q, प्राइस बढ़ा P1, Q बहुत ज़्यादा घट गया Q1, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से. प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा घट जा रहा है. सो इन दिस केस द डिमांड कर्व इज़ फ्लैटर. या okay, so next comes when ED is okay, so now comes ED is less than 1. ED 1 से कम कब होगा? When numerator will be less than the denominator, when percentage change in quantity demanded will be less than the percentage change in price. और ऐसा situation कब arise होगा? This type of situation can arise in the cases of necessary goods. Necessary goods जैसे vegetables, fruits ये सब day to day life में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो ये सब के प्राइस में ज़्यादा चेंजेस आ जाने से भी डिमांड में उतना चेंज नहीं आता क्योंकि हमको खाना है. अब हम खाएंगे नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेंगे? तो प्राइस जितना भी बढ़े डिमांड में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है. So when percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price and the elasticity of demand will be less than 1 और less लिखना भूल गई and the demand is known as inelastic demand. So ये है हमारा इनिशियल प्राइस, ये है इनिशियल क्वांटिटी. प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ लेकिन क्वांटिटी में उतना डिक्रीमेंट नहीं हुआ. सो यहाँ पे डिमांड कर्व स्टीपर बन रहा है. गेटिंग इट? सो इन सच केस द डिमांड इज़ नॉन एज इनइलास्टिक डिमांड. पहला क्या था? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. जब दोनों के वैल्यू सेम होंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों के वैल्यू सेम हो गए. सेकेंड क्या था हमारा? सेकेंड था कि जब ED विल बी मोर देन 1 तब क्या होगा? इलास्टिक डिमांड होगा. इन सच केस डिमांड कर्व विल बी फ्लैटर. और फिर थर्ड आ जाता है व्हेन ED इज़ लेस देन 1 तब क्या होगा? डिमांड कर्व विल बी स्टीपर एंड द डिमांड विल बी नॉन एज इन इलास्टिक डिमांड. ओके कूल. सो नेक्स्ट है हमारा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0. इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 क्या होगा? कब होगा? फार्मूला में वापस आओ. तो जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 0 होगा तब आउटपुट 0 होगा. When there is no change in quantity demand with change in price, then demand is said to be perfectly inelastic. In this the demand curve is vertical straight line and parallel to y-axis. ये हमारा इनिशियल प्राइस बढ़ गया. क्वांटिटी है ये इनिशियल क्वांटिटी लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया. दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 0. So in such case elasticity is equal to 0 and it is known as perfectly inelastic demand. हाँ तो नेक्स्ट है ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट. कब होगा इन्फिनाइट? जब डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 0 देन आउटपुट विल बी इन्फिनाइट. So when there is a change in demand at the prevailing price in the market, then the demand is said to be perfectly elastic demand. Prevailing price, fixed price में quantity demanded ही change हो जा रहा है.
तो इन सब सिचुएशन में ई डी विल बी इक्वल टू इन्फिनाइट. इन दिस केस द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. ये है हमारा प्रिवेलिंग प्राइस, इनिशियल प्राइस. ये है हमारा इनिशियल क्वांटिटी. क्वांटिटी बढ़ जा रहा है, हाँ बढ़ रहा है, बढ़ के हो रहा है Q1. सो इन दिस केस ई डी इज इक्वल टू इन्फिनाइट. सो आई होप सबको समझ आ गया होगा. यदि नहीं आया तो कमेंट में टाइप कर देना, समझा दूँगी. ओके, सो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं अपलोड करूँगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फिर 2 दिन केस स्टडी भी इंक्लूड करूँगी. तो स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू.